محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالی اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا. فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. 1 فروری سے اسکول کی کشادگی، تمام سرکاری مخلوعات جائیدادوں پر ایک ہی عنقریب تقررات عمل میں لائے جائیں گے. ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کا اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس سے خطاب. ایرپلی منڈل کے رہنے والے قائد اسماعیل پٹیل کے آخری رسومات میں رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی شرکت و ان کے سانحہ ارتحال پر کیا افسوس کا اظہار. گفٹ اسماعیل کے تحت 6 ایمبولینس کا ریاستی وزیر KTR نے کیا افتتاح. PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی کی شرکت. بودھن روڈ بنی چوروں کی پہلی پسند. مسلسل چوری کے واقعات پر گرفتار کوئی نہیں، پولیس کی کارروائی پر سوال. بودھن رکن اسمبلی محمد شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کا دورہ نوی پیٹ منڈل. مختلف تقریب میں شرکت و رنگولی مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں کی انعامات کی تقسیم. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے ذمہ دار عہدیداران سے اجلاس منعقد کر کے تمام مخلوعات جائیدادوں کو ایک ساتھ تقرر کرنے کے احکامات صادر کیے. ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے آج دیگر اہم ترین موضوعات پر وزیر، ضلع کلکٹر و دیگر محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران سے اجلاس منعقد کر کے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریونیو سے تعلق رکھنے والے تمام اہم مسائل کو فی الفور مکمل کر کے دھرانی پورٹل کے تحت ضروری تصحیح کو 1 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت دی، اور کہا کہ کووڈ-19 کا ٹیکے کی فراہمی کے لیے اہم ترین اقدامات عمل میں لانے کے لیے طبی و صحت محکمے کے عہدیداران کو احکامات جاری کیے، اور جنگلات کی افزائش کو اہم ترین اہمیت دیتے ہوئے وائکنٹھا دھامم کی تعمیری کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کا انکشاف کیا. سینئر کارپوریٹر و مجلسی فلور لیڈر بلدیہ شکیل فاضل کی قیادت میں ڈویژن نمبر 54 ترقی کی راہ پر گامزن. میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان کے ہاتھوں ترقیاتی کاموں کا ہوا آغاز. عوام کی جانب سے کیا گیا قائدین کا والہانہ استقبال. شہری صدر مجلس و فلور لیڈر بلدیہ سینئر کارپوریٹر محمد شکیل فاضل کی قیادت میں ایک جانب شہر میں کئی ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے تو دوسری جانب مجلسی حلقے میں جوش کی نئی لہر پائی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ڈویژن نمبر 54 میں عوامی مسائل کو بر وقت حل کرتے ہوئے عوام کے دلوں پر راج کر رہے. اسی طرح سے آج ان کی نمائندگی پر علاقے میں 10 لاکھ کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا. اس تقریب میں میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان نے شرکت کرتے ہوئے ان ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا اور ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا. اس موقع پر مقامی عوام کی جانب سے اپنے ہر دل عزیز قائدین کو تہنیت دیتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش کی گئی. اس تقریب میں کوآپشن ممبر شہر محمد ارشد پاشا و دیگر نے شرکت کی. آج ڈویژن نمبر 54 میں جنرل فنڈ کے تحت 10 لاکھ کی CC روڈ کا اناگریشن آنریبل میئر میڈم صاحبہ جناب نیتو کرن صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا، جس میں مہمان خوشی کی حیثیت سے ہمارے ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب اور شہباز صاحب اور ارشد پاشا صاحب اور محلے کے تمام لوگ میڈم کا استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے بزی شیڈول میں آ کر انہوں نے ہمارے وقت دیا. یہ روڈ جو تھی 2018 میں جنرل فنڈ کے تحت لگائی گئی تھی. کچھ وجوہات کی وجہ سے اس روڈ کو تاخیر ہوئی
लेकिन इंशाल्लाह अभी रोड पड़ जाएगी, रोड पड़ेगी और आगे भी मेन ड्रेन का भी काम है, इंशाल्लाह वो भी काम पॉलिटेक्निक को पहुँचेगा। इस ज़िम्मन में मैं मैडम का हमारे महल्ले की आवाम नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार की मनसूखी व LRS के खिलाफ रियल इस्टेट ताजर जिया अहमद की काविशें काबिल सताइश। नौजवानों की जानिब से दी गई जिया अहमद को तहनीत। हुकूमत की जानिब से LRS के ऐलान के बाद आम अवाम कई मसाइल से दो चार थी और इसके खिलाफ रियासत गिर सतह पर एहतजाज 4 माह तक जारी रहा और जिले में भी रियल इस्टेट ताजिर जिया अहमद ने इस एहतजाज से जुड़ते हुए इस एहतजाज को काफी मजबूती के साथ कायम रखा और हुकूमत की जानिब से LRS व नए रजिस्ट्री तरीक़ेकार को बर्खास्त के ऐलान पर कई हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई और LRS के सबब न बिकने वाली अराजी भी अब फरोख्त हो रही है। ऐसे ही बासर के रहने वाले नौजवान शेख नजीर अहमद, शेख शारिक अहमद की अराजी भी अब LRS वो नए रजिस्ट्री कानून के बर्खास्त होने के बाद आज वो अपने प्लॉट को फरोख्त करने में कामयाब हुए, जिस पर इन्होंने जिया अहमद की जदोजहद की सताइश करते हुए इनको तहनीत दी। इस मौके पर सलीम, हाजी मस्तान व दीगर मौजूद थे। जिले निजामाबाद के कलेक्टर ग्राउंड में जागृति की निगरानी में मुनक्किद करदा रंगोली मुकाबलाजात में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण ने शिरकत करके रंगोली को रियासत तेलंगाना की तहजीब की अक्कासी करार दिया। जिले निजामाबाद के कलेक्टर ग्राउंड में जागृति की निगरानी में मुनक्किद करदा रंगोली के मुकाबलाजात में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर निजामाबाद नीतू किरण शेखर ने शिरकत करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व लड़कियां संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र जागृति की निगरानी में मुनक्किद करदा रंगोली मुकाबलाजात में शिरकत करके कामयाब बनाने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तहजीब को मद्देनजर रखकर रंगोलियों का डिजाइन करने से दीगर ममालिक भी इस पर अमल करने के तहत कामयाब कोशिश करते हुए संक्रांति त्यौहार को भी बदकमा त्यौहार के बनिस्बत बनाया जाना काफी खुशाइन बात है। कहते हुए इन्होंने रंगोली मुकाबलाजात में शिरकत करके कामयाब करार दिए गए खवातीन व लड़कियों में इनामात की तकसीम अमल में लाकर संक्रांति त्यौहार के पेश नजर పేరుని గడిస్తూ ముందుకెళ్తా ఉంది। ప్రతి దాంట్లో కూడా అది సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కానివ్వండి, ఏ విషయంలోనైనా కూడా అక్క పేరును ప్రపంచం మొత్తం వినిపించేలా మార్మోగుతూ మరి జాగృతి సంస్థ అనేది ముందుకు సాగుతూ ఉంది। మరి దీనికి కారణం అక్క ప్రేరణ అయితే మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా అంత కష్టపడి పని చేస్తారు। ఈ రోజు మన ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు ఆధ్వర్యంలో జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు। మహిళా మనులందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। ఈ ముగ్గుల పోటీలో మహిళలకి ఎంతో ఇష్టమైంది, దాన్ని మన కవితక్క మహిళగా ఉంది దాన్ని సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మర్చిపోకుండా తరుణంలో బతుకమ్మ కానీ ముగ్గుల పోటీలు కానీ మన మహిళలందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం చేయడం జరిగింది। महिलाएं కూడా పెద్ద సంఖ్యలో रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में जागृति महिला ग्रुप सदर अपूर्णा, जागृति कायदीन नाराला सुधाकर, जयपाल, हरीश, साई, नवीन व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में 1 फरवरी से स्कूल दोबारा खोलने का फैसला। तेलंगाना में स्कूल दोबारा खोलने के मसले पर आज अहम फैसला लिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से आज तमाम जिले कलेक्टर्स का इजलास तलब किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ स्कूल्स खोलने के मसले पर भी तबादले ख्याल करने के बाद 1 फरवरी से स्कूल्स खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने 9वीं जमात से आला तालीम के तमाम क्लासों को शुरू करने की हिदायत दी है। महकमे तालीमात को इंतजामात शुरू करने की हिदायत दी। दोनों तेलुगु रियासतों में हज दरख्वास्तों का मौक़िफ़ मायूस कुन। तेलंगाना में 3428 और आंध्र प्रदेश में 837 दरख्वास्तें फरीज़ा हज के सिलसिले में तातुल बरकरार। हज 2021 के लिए दरख्वास्तों के इदखाल की आखिरी तारीख आज खत्म होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों में दरख्वास्तों का मौक़िफ़ मायूस कुन रहा। कोरोना वबा आज़मीन हज के लिए नए शराइत और अखराजात में इजाफे के नतीजे में मुल्क भर में दरख्वास्तों की तादाद इंतहाई कम रही। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दरख्वास्तों की कम तादाद को देखते हुए पहले ही मोहलत में 1 माह की तौसीक कर दी थी, जो 10 जनवरी को खत्म होगी। तेलंगाना में आज शाम तक 3428 दरख्वास्तें दाखिल हुई है, जबकि 2019 में 13,000 से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। आंध्र प्रदेश में 837 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जबकि 2019 में 3,350 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी और तमाम हज के लिए मुंतखब करार पाए थे। बताया जाता है कि कोरोना वबा के असरात को देखते हुए अवाम फरीजा हज की अदायगी के सिलसिले में एहतियात कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने हज और उम्रे के सिलसिले में कई शराइत आयद किए हैं, जिनमें आज़मीन की उम्र 18 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस नई शर्त के नतीजे
में कमसन और ज़ईफुल उमर अफराद फरीजा हज की अदायगी से अज खुद दूर हो गए। सऊदी हुकूमत मुत्तहिद तादाद में हज की इजाजत देगी और ऐसे ममालिक के आज़मीन को मदऊ नहीं किया जाएगा। कोरोना के केसेस जारी है। इसी दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने बताया कि हज के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन के सिलसिले में सूरत हाल अभी तक गैर वाज़ेह है। सऊदी हुकूमत से हज मुआहदे की तकमील कब होगी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हज मुआहदे के बाद ही हज को ना तय होगा। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि महदूद तादाद के साथ हिंदुस्तानियों को हज की इजाजत दे दी जाएगी। इन्होंने कहा कि रियासत में आज़मीन के इंतखाब के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की जाएगी क्योंकि अभी तक मुल्क के लिए हज कोटा अलॉट नहीं हुआ है। बताया जाता है कि मुल्क भर में तकरीबन 60,000 दरख्वास्तें दाखिल हुई है, जबकि हर साल दरख्वास्तों की तादाद तकरीबन 3 लाख होती है। निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने आज कंटेश्वर पर वाक़े अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर का आगाज अमल में लाया। निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने आज कंटेश्वर पर वाक़े नए अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि अवाम को बेहतर खिदमत फ्राहम करते हुए सख्ती के साथ मुआयनाजात की तस्दीक करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने आज पिटलम मंडल के मुकाम पर 34 लाख की लागत से सीसी रोड के कामों का आगाज अमल में लाया। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे पिटलम मंडल के मुकाम पर पुलिस स्टेशन के सामने 34 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली जुक्कल हनुमान शिंदे ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए आज 34 लाख की लागत से सीसी रोड के कामों का आगाज अमल में लाया जा रहा है और जल्द अज जल्द सड़क की तामीर अमल में लाई जाएगी ताकि डिवीजन के अवाम में सहूलतें पहुँचाई जा सके। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए शहर को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए हरीता हरम शजरकारी के जरिए पौधे लगाते हुए शहरी तरक्की के लिए कई तरक्याती कामों को रूबे अमल लाए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि साबिका कांग्रेस की हुकूमत में न होने वाली तरक्याती और फलाही स्कीमात को तेलंगाना हुकूमत में रूबे अमल में लाकर अवाम को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी कविता विजय, ZPDC श्रीनिवास, सरपंच विजया लक्ष्मी व दीगर मौजूद थे। चिकन की कीमतों में गिरावट, रिटेल ताजरीन के लिए मुश्किलात। शहर में मुल्क के दामों में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। इस गिरावट ने ताजरीन बिलखुसूस रिटेल ताजरीन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी है और मतमुल और तालीम याफ्ता तबके ने चिकन इस्तेमाल से गुरेज शुरू कर दिया है। दोनों शहरों में इतवार को चिकन की फरोख्त में इजाफा होता है, लेकिन बर्ड फ्लू की तौसीक के बाद आज पहले इतवार को शहर में चिकन की फरोख्त में 50% गिरावट रिकॉर्ड की गई। कहा जा रहा है कि आइंदा 2 दिनों में मजीद गिरावट आ सकती है। कई इलाकों में रिटेल ताजरीन ने बताया कि आज चिकन बाजार में मंदी देखी गई और कीमतों में गिरावट आ रही है। होलसेल ताजरीन ने बताया कि फरोख्त में गिरावट के सबब चिकन के वजन में इजाफा हो रहा है और जब वजन में इजाफा हो तो कीमतों में नुमाया आती है। ढोक ताजरीन का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में चिकन की होलसेल कीमत 27 रुपए फी किलो तक कम हो चुकी और आइंदा हफ्ते में मजीद गिरावट मुमकिन है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से तेलंगाना को लाई जाने वाली मुर्गे की कीमत भी कमी आ रही है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में चिकन की कीमत मुस्तहकिम है, जबकि तेलंगाना में बर्ड फ्लू न होने की तौसीक के बावजूद शहरों में खौफ है और लोग वरंगल और पेदापल्ली में मुर्गियों के फौत होने के बाद चिकन के इस्तेमाल को तर्क कर रहे हैं। हुकूमत ने कोरोना के आगाज के वक्त चिकन के सबब कोरोना फैलने की अफवाहों को दूर करने कई इक़दाम किए थे, क्योंकि इस वक्त चिकन की कीमत 10 रुपए किलो तक पहुंच चुकी थी और मुफ्त तकसीम के वीडियो गश्त कर रहे थे। लेकिन हुकूमत ने अफवाहों को मुस्तरद करके कहा कि चिकन के इस्तेमाल से क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा होता है और क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफे के लिए चिकन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब बर्ड फ्लू की वबा के मुतालिक इत्तलात ने चिकन की फरोख्त में 50% से ज्यादा गिरावट रिकॉर्ड करवाई है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली तेलंगाना के 33 अजला से। तेलंगाना के 33 अजला से उम्मीदवारों को हिंदुस्तानी फौज में भर्ती करने आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस सिकंदराबाद के तहत रिक्रूटमेंट रैली 5 से 24 मार्च तेलंगाना स्पोर्ट्स स्कूल हकीमपेट में मुनक़िद होगी। ये भर्तियां मुख्तलिफ जिम्रों बमुश्मल सोल्जर टेक्निकल, हवाबाजी, इम्यूनेशन, सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटरनरी, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल सोल्जर, जनरल ड्यूटी व सोल्जर ट्रेडमेंस के तहत होगी। इस रैली के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी से 17 फरवरी तक किया जा सकता है और सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार ही अहल होंगे।
تلنگانہ کے 58 ڈگری کالجز میں ایک بھی داخلہ نہیں ہوا. عثمانیہ کے تحت 10 اور کاکتیہ یونیورسٹی کے تحت 19 کالجز شامل ہیں. ہزاروں ڈگری نشستیں مخلوع. تعلیمی سال 2020-21 کے دوران بعض ڈگری کالجز میں داخلوں کا معاملہ انتہائی مایوس کن رہا. ڈگری کالجز میں داخلوں کا عمل حال ہی میں مکمل ہوا ہے، جس میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ ریاست کے 58 ڈگری کالجز میں داخلے صفر رہے. یہ کالجز مختلف کورسز میں ایک بھی امیدوار کو داخلے کے لیے راغب کرنے میں ناکام ثابت ہوئے. ذرائع کے مطابق کاکتیہ یونیورسٹی کے تحت موجود 19 ڈگری کالجز میں ایک بھی داخلہ نہیں ہوا. مہاتما گاندھی یونیورسٹی کے تحت 14 ایسے ڈگری کالجز ہیں جن میں داخلہ صفر ہے، جبکہ عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت 10 کالجز میں ایک بھی امیدوار نے کسی بھی کورس میں داخلے میں دلچسپی نہیں دکھائی. مذکورہ 58 کالجز میں 15,060 نشستیں ہیں جو داخلوں کا عمل مکمل ہونے کے بعد مخلوع رہ گئی. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ صفر داخلوں سے متعلق بیشتر کالجز دیہی علاقوں میں واقع ہے. تلنگانہ اسٹیٹ کونسل فار ہائر ایجوکیشن اور کمشنریٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن نے ڈگری آن لائن سروس تلنگانہ دوست کے تحت آن لائن داخلے کے لیے کاؤنسلنگ کا اہتمام کیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ 2,18,994 نشستیں کاؤنسلنگ میں پر ہو گئی. 988 کالجز میں جملہ 4,11,970 نشستیں دستیاب ہے. آن لائن کاؤنسلنگ سے داخلوں میں 31,220 کا اضافہ ہوا ہے. گزشتہ سال 1,88,774 نشستوں پر داخلے ہوئے تھے، جبکہ جاریہ سال 2,18,994 نشستوں پر داخلے مکمل ہوئے. اس مرتبہ سرکاری ڈگری کالجز میں طلباء نے داخلوں میں زیادہ دلچسپی دکھائی. 123 گورنمنٹ ڈگری کالجز بمشمول آٹونومس کالجز میں 46,198 طلباء نے داخلہ لیا، جبکہ جملہ نشستوں کی تعداد 71,640 ہے. 814 خانگی غیر امدادی کالجز میں 31,985 نشستیں ہیں، جن میں سے 1,57,937 پر داخلے مکمل ہوئے ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت 10 کالجز میں 2,220 نشستیں مخلوع رہی کیونکہ ان میں ایک بھی داخلہ نہیں ہوا. کاکتیہ یونیورسٹی کے تحت 19 کالجز کی 5,760، مہاتما گاندھی یونیورسٹی کے 14 کالجز کی 3,660، پالمور یونیورسٹی کے 5 کالجز کی 1,470، ستیوانا یونیورسٹی کے 6 کالجز کی 1,240 اور تلنگانہ یونیورسٹی کے 3 کالجز کی 650 نشستیں مخلوع رہی. متحدہ نظام آباد میں 12,000 ملازمین کے لیے تربیتی پروگرام. مرکزی حکومت نے 16 جنوری سے ملک کے تمام علاقوں میں ٹیکہ اندازی کے ویکسین تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ملک کے تمام ریاستوں کے چیف منسٹر کو ویکسین کی تقسیم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کریں گے اور پہلے مرحلے میں طبی عملہ ورکرز، پرائمری ہیلتھ سینٹرز، اربن ہیلتھ سینٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف کو دیا گیا تھا. اب دوسرے مرحلے میں محدود طبقے کو دیتے ہوئے تیسرے مرحلے سے عام کرنے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں اور اس کے لیے 12 جنوری سے متحدہ ضلع کے خانگی اور سرکاری دواخانے 12,000 عملے کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں تربیت دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کامریڈی ضلع میں 4,000 عملے کی نشاندہی کی گئی. ان میں سے 3,500 افراد کا تعلق سرکاری دواخانوں سے ہے اور 500 افراد کا تعلق خانگی دواخانوں سے ہے. نظام آباد ضلع میں 8,000 طبی ملازمین کی نشاندہی کی گئی اور انہیں پہلے مرحلے میں ٹیکہ اندازی کے بارے میں تربیت دی جائے گی اور ویکسین کے تحفظ اور اس کے استعمال کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تربیت دی جائے گی اور ویکسین کے آمد کے ساتھ ہی سینٹر دفتر میں اسے محفوظ کیا جائے گا اور اسے یہاں سے پرائمری ہیلتھ سینٹروں کو تقسیم کیا جائے گا. حکومت کی جانب سے فراہم کردہ نئے باکسوں میں اسے فراہم کیا جائے گا. 2 سے 8 ڈگری درجہ حرارت میں اسے محفوظ کیا جائے گا اور اب تک اس بارے میں تربیت بھی دے چکے ہیں. اب اس بارے میں آشا ورکر سے لے کر DMNHO, DIO, DCH سطح کے عہدیداروں نے 15 دن سے عملے کو شعور بھی بیدار کیا تھا اور اب اس کے عملے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. نظام آباد میئر نیتو کرن شیکھر نے آج مجاہد آزادی لال بہادر شاستری کی 55ویں برسی کے موقع پر ان کے مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی. نظام آباد میئر نیتو کرن شیکھر نے آج مجاہد آزادی و نائب وزیر اعظم ہند لال بہادر شاستری کی 55ویں برسی کے موقع پر شہر کے تلک گارڈن چوراستے پر واقع مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے زبردست طریقے سے خراج عقیدت پیش کی. اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو آزادی دلانے میں اہم ترین کردار و خدمات انجام دیتے ہوئے آزاد ہندوستان کے پہلے نائب وزیر اعظم ہند کے طور پر لال بہادر شاستری نے اہم ترین خدمات انجام دینے کا انکشاف کیا. ضلع نظام آباد کے واسوی کلب ونیتا اندور کی نگرانی میں منعقد ہونے والے آن لائن رنگولی مقابلہ جات میں شریک ہونے والے طلباء میں میئر نیتو کرن کے ہاتھوں رنگولی کے لیے قابل استعمال اشیاء فراہم کی گئی.
जिले निजामाबाद के वासवी क्लब सीनियर सेंटर व वासवी क्लब विनीता इंदौर की निगरानी में गवर्नमेंट स्कूल के तलबा को ऑनलाइन रंगोली मुकाबला जात प्रोग्राम मुनक्किद करने से शिरकत करने वाले तलबा को मेयर निजामाबाद नीतू किरण शेखर के हाथों रंगोली के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली अशिया फराहम की गई। భాగ్యాన్ని మనం అందించినందుకు వారికి నిజంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। మరి వయసులో ఎంతో పెద్దవాళ్ళు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు అందించారు। క్లబ్ పెట్టినప్పటి నుంచి వాసవి క్లబ్ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఎన్నో లక్షల మందికి వాళ్ళు సహాయ సహకారాలు అందించారు। మరి అందులో ఈసారి మన స్కూల్స్కి నా వార్డులో నా స్కూల్స్ నేను బాగు చేయాలి అని నేను అనుకున్నప్పుడు మరి భగవంతుడు నిజంగానే దానికి ఆసరగా వీళ్ళని అదే టైంలో నా దగ్గర పంపించడం। सैयद अजमत अली की MBBS में नुमाया कामयाबी पर जमतुमा हिंद कामरेड्डी की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद। सख्त मेहनत, लगन, जुस्तजू और मुसलसल जद्दोजहद ही के जरिए हम कामयाबी की मंजिलों को तय कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार जनरल सेक्रेटरी जमतुलमा हिंद कामरेड्डी सैयद अजमत अली ने MBBS में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले सैयद शोएब अहमद की तहनीती तकरीब में कहा। इन्होंने तालिब इल्म सैयद शोएब अली अहमद वल्द सैयद अहमद को कामयाबी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद मकसूद अहमद एडवोकेट लीगल एडवाइजर जमतुलमा ने इस मौके पर तलबा को मशवरा दिया कि वो मुसलसल जद्दोजहद के जरिए मुसाबिकती इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए आगे आए। इस तकरीब में मोहम्मद फेरोज प्रेस सेक्रेटरी एडवोकेट मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उस्मान एडवोकेट मोहम्मद परवेज, डॉक्टर समी अमान और दीगर अहबाब ने शिरकत। आखिर में हाफिज अब्दुल वाजिद साहब नायब नाजिम मदरसा ने दुआ की। रियासती वज़ीर आला KCR ने आज प्रगति भवन में स्कूल की कुशादगी के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वज़ीर आला KCR ने आज प्रगति भवन में दीगर अहम तरीन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करने के लिए कलेक्टर, पंचायत राज, रेवेन्यू, म्यूनसिपल, तिब्बी व सेहत महकमे तालीम, म्यूनसिपल व जंगलात के ओहदेदारान के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि जारिया साल कोरोना वायरस के पेश नज़र 10 माह से स्कूल को मुकफ़ल किया गया, जिसकी वजह से तलबा व तलबात का बेहद नुकसान होते हुए इनकी जिंदगियों से खिलवाड़। ताहम इजलास में जिम्मेदार ओहदेदारान से बहस व मुबाहिसा मुनक़्क़िद करके स्कूल की कुशादगी को अमल में लाने के लिए कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर अमल करते हुए तालीमी इदारों को शुरू करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मंजूरी हासिल होने की बुनियाद पर स्कूलों की कुशादगी के लिए तैयारियां करने की हिदायत जारी की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से किसान ज़राए क़वानीन के खिलाफ जबरदस्त धरना। साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, E अनिल, महेश कुमार गौड़, ताहिर बिन हमदान, मानाला मोहन का खिताब। किसान ज़राए क़वानीन के खिलाफ निजामाबाद में धरना चौक पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा रियासती वज़ीर P सुदर्शन रेड्डी, साबिक़ा गवर्नमेंट वेब इरावत्री अनिल, महेश कुमार गौड़, सदर जिले मानाला मोहन रेड्डी, केशव वेनु, टाउन सदर के अलावा निजामाबाद इंचार्ज अर्बन ताहिर बिन हमदान और कांग्रेस पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि किसान ज़राए क़वानीन को फौरी बर्खास्त करते हुए किसानों की फलाह बहबूदी के लिए इक़दाम करे, जबकि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूदी के लिए हर महज पर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि किसानों की उगाए जाने वाली फसल की कीमत मुकर्रर की जाती थी और वाजिब कीमत फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दाम करती थी, लेकिन रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों भी किसानों की फलाह बहबूद के लिए नाकाम हो चुके हैं। बातज़ा अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक याददाश्त हवाले की और ज़राए क़वानीन को फौरी मुस्तरद करने का मुतालबा किया। ఎలక్షన్ లో కూడా గొప్ప గొప్ప చెప్తారు ఈ పసుపు బోర్డు, కాకరకాయ బోర్డు, ఏది పసుపు ఏది, బోర్డు ఏది, తీరేది ఆర్చినోళ్ళల్లో చెప్పుడు మాకు రామాయణం చెప్పినట్టు. అదే విధంగా పసుపు లేదు. మనము మన సగం డిస్టిక్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మీద, చక్కెర ఫ్యాక్టరీ మీద బతికేవాళ్ళం. ఇప్పుడు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కూడా 50 టన్నులు తీస్తే 3200 రేట్ అయింది కాబట్టి ₹1,00,000 వస్తాయి. చెరుకు వెళ్ళమంటే ఫ్యాక్టరీలు నడుస్తారు. ఇది KCR గారి పని. ఇటువంటి అన్ని మరి రైతులకు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, దయచేసి ఆ స్టేట్లలో ప్రజలు రైతులు ఏ విధంగా కూర్చో ఉన్నారో మీరు ఇంకా 2 నెలల తర్వాత మార్చిలో మన గతి అధ్వానం గతి కావాలి.
रियासती वजीर KTR की जानिब से शुरू करदा गिफ्ट इस्माइल के तहत खम्मम रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने 6 एम्बुलेंस हवाले करके अपने दरिया दिली का दिया सबूत। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की जानिब से शुरू करदा गिफ्ट इस्माइल के तहत खम्मम रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने 6 एम्बुलेंस हवाले करके फराग दिली का सबूत दिया। इसी तरह से इस एम्बुलेंस को रियासती वजीर KTR ने हरी झंडी लहराकर आगाज अमल में लाया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर पुव्वाड़ा अजय कुमार, MP रंजित रेड्डी, MLC महेंदर रेड्डी, सत्तुपल्ली MLA सांड्रा वेंकटा वीरయ్య, वायरा MLA रामलू नायक, आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, MLA सईदी रेड्डी, TRS पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बंडी रमेश, चित्तूर सिंहाद्री, नामा पृथ्वी, नामा भाव्या व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुत्तहदा खम्मम के अवाम को साफ व शिफाफ तशफ़ी बख्श खिदमात अंजाम देने के मकसद से 1.23 करोड़ रुपए के मसारिफ से जदीद तौर पर एम्बुलेंस हवाले करके अपनी फराग दिली का सबूत देने का इंकशाफ किया। आर्मूर रुकन असेंबली जीवन रेड्डी के PA की यौम पैदाइश तकरीब का आर्मूर TRS कायदीन की जानिब से इनेकाद। रुकन असेंबली आर्मूर व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने PA श्रीकांत के जन्मदिन पर आज आर्मूर MLA कैंप ऑफिस पर हल्का असेंबली आर्मूर इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी, TRS अखिलती कायद सुमेर अहमद, म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, नैब चेयरमैन शेख मुन्नू ने मुबारकबाद पेश की और केक काटा गया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर्स अब्दुल रहमान, सैयद फयाज, काउंसलर इम्तियाज के अलावा TRS सीनियर लीडर पंडित प्रेम, TRS लीडर पंडित पवन, नरेंद्र व दीगर मौजूद थे। इसके अलावा मोहम्मद नबी, मोहम्मद हामिद और अब्रार ने भी श्रीकांत को मुबारकबाद पेश की। बोधन रोड बनी चोरों की पहली पसंद। आए दिन बोधन रोड पर चोरी के वाकयात आम, दुकान मालिकिन व अवाम में खौफ का माहौल। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम। महकमे पुलिस पर से उठता हुआ अवाम का भरोसा। बोधन रोड आजकल चोरों की पहली पसंद बन चुकी है। 1 साल के अरसे के दौरान कई घरों व दुकानों को चोर एक के बाद एक निशाना बनाते जा रहे हैं, जिस पर भी अफसोस इस बात का है कि कई मामलात में CCTV फुटेज मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम है। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल बोधन रोड नजद SBI बैंक मौजूद MB एजेंसीज की है, जहां फिर इस माह की 9 तारीख को चोरों ने बड़ी ही मेहनत से इस दुकान का शटर खोला और कीमती अशिया की चोरी की कोशिश की। ये मरहला काफी देर तक जारी रहने के बावजूद भी और तमाम वाज़े की CCTV फुटेज महकमे पुलिस के हवाले करने पर भी चोरों की गिरफ्तारी करने से महकमे पुलिस कासिर है। ये एक वाक़या नहीं जो पेश आया है, इस तरह के कई वाक़यात बोधन रोड पर इस दौरान पेश आ चुके हैं, जिनमें से कई सिर्फ इसलिए मंजर आम पर नहीं आ रहे जो कि महकमे पुलिस की कार्रवाई में कोई फंसना नहीं चाहता और मुकदमे के बाद भी चोर को पकड़ने में पुलिस अक्सर हालत में नाकाम हो रही है। बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने एड़पल्ली मंडल के साकिर इस्माइल पेट के साना इर्तहाल पर इनके अरकान खानदान को दिया पुरसा। बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा साहिबा ने आज दौरा करते हुए मौजे फखराबाद में क़याम अमल में लाए गए तेलंगाना क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज अमल में लाया। इसी तरह से इन्होंने दीगर मंडलों में मुनाकिद करदा रंगोली के मुकाबला जाती प्रोग्रामों में शिरकत कर कामयाब करार दिए गए खवातीन व लड़कियों को इनामात की तकसीम अमल में लाने के बाद इन्होंने MPDO साजिद अली की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करके पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरमैन रंजिता यादव, सरपंच नरेश कुमार और TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। एनी स्पोर्ट्स रहने दीजिए, बच्चे पढ़ के आगे बढ़ते बोल के ज़रूरी नहीं है, बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते, चाहे बच्चियां रहने दीजिए चाहे बच्चे रहने दीजिए, उनको इंकरेज करिए स्पोर्ट्स के लिए या पढ़ाई के लिए। पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन को ले लीजिए, उन्होंने भी पढ़ाई में किधर थे और फिर कैसे साइंटिस्ट बन गए। तो उस तरह एक बच्चा पढ़ाई के पीछे रहने से आगे बढ़ता ज़रूरी नहीं है, बच्चे गेम्स खेल के भी आगे बढ़ सकते हैं। और स्पेशली मैं अभी देखी स्वामी लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे, तो हैट्स ऑफ टू देम। बिना शू के बिना चप्पल के भागना खेलना गेम्स में कोई इजी बात नहीं है, तो रियली वो लोग के लिए भी मैं बहुत देखकर अभी बहुत खुशी हुई कि बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा साहिबा ने नवीपेट का दौरा करके तेलंगाना क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज अमल में लाकर दीगर मंडलों में मुनाकिद करदा रंगोली मुकाबला जात में कामयाब करार दिए गए खवातीन व तलबात को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने आज एड़पल्ली मंडल के मुकाम से ताल्लुक रखने वाले इस्माइल पटेल के अचानक वफात होने पर इन्होंने इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करते हुए तमाम अरकान खानदान की हिम्मत जुटाकर इनके साना इर्तहाल पर इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मौजूद थे।
اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ 1 فروری سے اسکول کی کشادگی، تمام سرکاری مخلوعات جائیدادوں پر ایک ہی عنقریب تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کا اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ ایرپلی منڈل کے رہنے والے قائد اسماعیل پٹیل کے آخری رسومات میں رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی شرکت و ان کے سانحہ ارتحال پر کیا افسوس کا اظہار۔ گفٹ اسماعیل کے تحت 6 ایمبولینس کا ریاستی وزیر KTR نے کیا افتتاح، PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی کی شرکت۔ بودھن روڈ بنی چوروں کی پہلی پسند، مسلسل چوری کے واقعات پر گرفتار کوئی نہیں، پولیس کی کارروائی پر سوال۔ بودھن رکن اسمبلی محمد شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کا دورہ نوی پیٹ منڈل، مختلف تقریب میں شرکت و رنگولی مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں کی انعامات کی تقسیم۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔